Good morning, students. Now, from today, we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, Company Final Accounts. Now, in 11th standard, we have seen final accounts of sole proprietorship. In that, we prepared two accounts and one statement, that is trading trading account, profit and loss account, and balance sheet. Now, in 12th standard part 1, we learn partnership final account. Now, under that, we prepare how many accounts? Trading account, profit and loss appropriation account, then partners capital or current account, and last balance sheet. Now, here we have to see company final accounts. If we are doing business in company form, so how we have to prepare accounts of company, final accounts of company. So that we discuss in this chapter. So total how many points we will discuss? So first introduction, then meaning of financial statement, then meaning of financial year, then characteristics of financial statement, then objectives of preparation of financial statement, then form of balance sheet and form of statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बराबर. अब इस चैप्टर में हम इतना कुछ देखेंगे. सो बिफोर दैट, वाई वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स of the company. So it is given in your introduction. What is given? So you can read in your textbook. Financial statements of company are utmost importance for its shareholders, tax authorities, analysts, management, and other stakeholders. So financial statement. So final account is also called as financial statement. Now, for whom it is important? So it is important for shareholders who invest their money in the company, then tax authorities, government, then analysts who do the analysis of the company's final statement, then management and other stakeholders. Stakeholders means what? Those persons who have interest or interested in the company. Now they give information about financial performance and position of the company. Now final accounts, company final accounts gives information about what? Financial performance and position of the company. So if you want to know position of any company and financial performance of any company, we have to see what? Final account of that company. Now according to section 129(1) of the Companies Act 2013 lays down that financial statement shall give a true and fair view of the statement of affair of the company or companies. So financial statement shall give a true and fair view of companies, है ना, company or companies. They should also comply with the accounting standard notified under section 133 and shall be in the form or forms as may be provided for different class or classes of companies in schedule 3. So we have to prepare this final accounts according to accounting standard, है ना. हमें accounting standard follow करके सारे accounts बनाने हैं. Now in this chapter, we discuss what? Preparation of balance sheet and statement of profit and loss account as per Companies Act 2013. Now, हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है? So, under this chapter, we learn how to prepare balance sheet and profit and loss account as per Companies Act 2013. Okay. So, first of all, we discuss meaning of financial statement. So, what is financial statement? Now meaning of financial statement. So what is financial statement? So financial statement are statement presenting accounting information in brief at the end of accounting process for an accounting period. So financial statements are what? These are statement presenting accounting information in brief at the end of accounting process for an accounting period. Now, financial statement provide information regarding financial results to its internal and external users. So, financial statements provide information about what? Financial results to the internal and external users. So, from this financial statement, internal user and external user can know about the financial position of the company. Now, as per section 240 of the Companies Act 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेटेड टू कंपनी इंक्लूड्स. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना. सो हियर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर? सो इट इंक्लूड्स व्हाट?
So first, a balance sheet as at the end of the financial year. So what is first thing in financial statements according to Companies Act 2013? A balance sheet. After that, a profit and loss account, or in case of entity carrying on any activity not for profit, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर. अगर जो बिजनेस है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. अगर जो बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है ना, टू प्रोवाइड दी सर्विसेज टू द सोसाइटी, अगर ऐसा फर्म है तो उसको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर. So these are the two statement. First balance sheet and second profit and loss statement. Now third one, that is cash flow statement for the financial year. Now here in company's final account we have to also prepare cash flow statement. Now in cash flow statement they show by which way cash comes in business and by which way cash goes out from the business. So cash in and cash out. So cash inflow and cash outflow. देन अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल. अगर इक्विटीज में कोई चेंजेस है तो उसके रिलेटेड कोई स्टेटमेंट भी यहाँ पर होता है अगर एप्लीकेबल है तो. एंड नोट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, और इसकी नोट्स जो हमने बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स दिखाए है ना, जो मेन बैलेंस है वो अमाउंट कैसे आया है उसकी नोट्स भी हमको दिखानी पड़ती है. तो दिस फाइव स्टेटमेंट्स आर देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. Now it should be noted that balance sheet shows the financial position at the particular period point of time, and its title should be balance sheet as at. balance sheet as at आपको दिया, देखो टेक्स्ट बुक क्या दिया है, balance sheet as at. Then profit and loss statement show performance for the period ended on particular date, which is usually a year end, and its title should be profit and loss statement for the year ended. सो बैलेंस शीट हम कौन से डेट पे बनाते हैं? सो इट इज प्रीपेड ऑन पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम? बैलेंस शीट एज एट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं हम? पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा हम दिखाते हैं. नाउ एज आई सेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. देखो यहाँ पे क्या दिखा है? एंडेड. Now, if profit and loss account is prepared for any period shorter or longer than a year, अगर एक साल से कम समय के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो क्या करना है? तो फॉर एग्जांपल अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड इस फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रीपेड फॉर 6 मंथ अप टू 31 मार्च. अगर कंपनी जब कॉर्पोरेट होती है, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हम 1 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी डेट पे स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमने मान लो 1 अक्टूबर 2016 पे स्टार्ट की है तो हमारा अकाउंटिंग कब होगा? 31 मार्च 2017. यहाँ पे आपको दिया देखो 31 मार्च 2017. सो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस द टाइटल शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द एंडेड ऑन 31 मार्च 2017. हेडिंग क्या होगा आपका? यहाँ पे ये होगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2017. अदरवाइज दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 31 मार्च 2017. अगर इन बिटवीन होता है तो लेस देन 1 ईयर होता है तो आपको ये हेडिंग देना है. लेकिन अगर ईयरली होता है तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017. सो दिस द हेडिंग. आपको हेडिंग में क्या लिखना है वो. नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, financial year is related to any company or body corporate means the period ending on the 31st March of every year. यानी क्या होता है? जो पीरियड एंडिंग होता है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर. तो हमको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल ईयर. If company is incorporated on or before 1st day of the January of the year, the financial period ends on 31st day of March of the following year. अब जब बिजनेस स्टार्ट होता है, मैंने जैसे आपको समझाया कि बिजनेस हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कोई डेट फिक्स नहीं है ना. लेकिन हमने वो बिजनेस जिस डेट से चालू किया है वो डेट से लेके अपना अकाउंटिंग पीरियड कब तक होगा? 31 मार्च. 31 मार्च के दिन हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बना देना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देना है. नाउ जनरली फाइनेंशियल इज ऑफ 12 मंथ्स
फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। आपको दिया है, देखो जनरली कितने मंथ का होता है फाइनेंशियल ईयर, तो कि 12 मंथ। और कब स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड कब होता है, 31 मार्च, बराबर। तो आपको याद रखना है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स फाइनेंशियल ईयर इज देयर, सो 12 मंथ जनरली। अगर इन बिटवीन स्टार्ट हुआ है बिजनेस कंपनी तो लेस देन 12 मंथ होगा, लेकिन जनरली कितना होता है, 12 मंथ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। नाउ दिस इज व्हाट फाइनेंशियल ईयर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। नाउ हियर what is the first characteristics? So financial statements are called historical statements as they are related to past period. So financial statements are also called what, historical statement. Why? Because they are related to past period. In this financial statement information is about past period, जो समय पसार हो चुका है। Now figures state in financial statements are expressed in terms of money. Financial statement में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है वो कैसी होती है, in terms of money. Then third one, financial statements are based on recorded fact and do not include even significant fact which are not recorded in the books. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, जो इंफॉर्मेशन हमने बुक में रिकॉर्ड की है। जो इंफॉर्मेशन सही है लेकिन हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, वो इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड करते नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपको, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द कंपनी इज नॉट रिकॉर्डेड एज नो कॉस्ट इज इंकर्ड फॉर एक्विजिशन देयर ऑफ। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकते नहीं। क्यों? बिकॉज नो कॉस्ट इज इंकर्ड फॉर एक्विजिशन देयर ऑफ, बिकॉज नो कॉस्ट इज इंकर्ड। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द गिवन पीरियड एंड थस गिव्स आइडिया अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। So why we prepare profit and loss account? So to know profit or loss for the given period, and we can know the financial performance of the company. Then balance sheet show position of equity, liabilities and assets at a particular point of time, thus gives an idea about the financial position of the company. So balance sheet show what? Position of equities, liabilities and assets, so that we can know the financial position of the company. Now next 6.1, that is financial statement prepared based on generally accepted accounting principle. आपको दिया, देखो financial statements are prepared based on generally accepted accounting principle. हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी के, वो कैसे बनाते हैं, ऑन द बेस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लास्ट वन, दैट इज 7, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम आइटम्स वेयर ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर लॉ ऑफ डिफरेंस ट्रीटमेंट. For example, the person preparing account is free to select any alternative out of alternative available for method of valuation of inventory and method of providing depreciation. यानी हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सो इसमें पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो जनरली हम कहाँ पे पर्सनल जजमेंट लेते हैं, टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, है ना। देर आर सो मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, आउट ऑफ दिस वी कैन सिलेक्ट एनी मेथड, सो इट इज डिपेंड्स ऑन पर्सनल जजमेंट. Then rate of depreciation. So when we prepared financial statement, personal judgment in respect of some items where options are available under law. So under law there are certain options are available for personal judgment when we prepare financial statement. Now next topic is what? Objectives of preparing financial statement. Now what are the objectives? So first objective is what? To know about true and fair view of financial performance of company. This is the first objective, to know true and fair view of financial performance. Second, to know the true and fair view of financial position of the company. Second importance क्या है? To know the financial position of company. कैसी financial position? True and fair. Then to comply with legal requirement. According to Companies Act, each company has to prepare financial statement at the end of the financial year. So here to comply with the legal requirements we have to prepare financial statement, that is the objective, and to communicate financial information of the company to various interested parties. यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके थ्रू जितने भी लोग हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है
उसको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता चलता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो टू गिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, financial statements are prepared. That is the objective. So your main 4 objectives of preparing financial statement. Now next is form of balance sheet. Now how to prepare balance sheet in company's final account. Now we have seen how to prepare balance sheet in sole proprietorship in Ellen Standard, how to prepare balance sheet for partnership firm in partners final account. Now here in this chapter we see how balance sheet is prepared under Companies Act 2013. So here आपको दिया देखो पेज नंबर 117 पे कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर दिस फॉर्मेट. कंपनी में बैलेंस शीट आपको इस फॉर्मेट से ही बनाना है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013. शेड्यूल 3 गिव्स ओनली वर्टिकल फॉर्मेट. शेड्यूल 3 क्या देता है, ओनली वर्टिकल फॉर्मेट. वर्टिकल फॉर्मेट यानी क्या, there are two format by which we can prepare balance sheet, horizontal and vertical. So horizontal form में क्या करते थे हम, जो बैलेंस शीट हम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में बनाते थे ना, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म था. एक साइड क्या होता था लायबिलिटीज, दूसरी साइड असेट्स. यहाँ कंपनी में क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म. बराबर. सो दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, नाउ वी डिस्कस दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. तो आपको अब जो मैं पेज बोलता हूँ वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट. और आपको ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, क्योंकि फ्रॉम दिस चैप्टर देयर विल बी 11 मार्क्स क्वेश्चन इन सेक्शन एफ एंड इट इज कंपल्सरी एंड दे विल आस्क टू प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट. आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए पूछ सकते हैं 11 मार्क्स में. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मेट इन योर नोटबुक्स. नाउ ऑन पेज नंबर 126 you have to open page number 126. On this page this format is given. So here what is given, see, so balance sheet and statement of profit and loss as per schedule 3 of Companies Act 2013 are given only for explanation. For the purpose of examination, balance sheet and statement of profit and loss account and their subheads shown below are to be considered. यानी इससे पहले जो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, दैट इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन. आपकी एग्जाम में अभी जो हम फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं वो आपको कंसिडर करना है. सो हियर इट इज गिवन, सी बैलेंस शीट, उसमें क्या है, नेम ऑफ द कंपनी. आपको पहले कंपनी का नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज एट. एट मीन्स व्हाट, द डेट, जिस डेट पे आप बनाते हो वो डेट लिखना है. फिर कितने कॉलम देखो है, पर्टिकुलर्स, फिर नॉट नंबर और एज एट रुपीज. एज एट रुपीज यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऑन 31 मार्च. अमाउंट कैसे लिखना है, रुपीज में. यहाँ क्या लिखना है, नॉट नंबर. ये नॉट नंबर याद रखना. सो हियर देयर आर 3 कॉलम्स. फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, देन नॉट नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज. नाउ वी डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के कैसे बनाना है वो. तो आपको भी अपनी पेज में पेज नंबर 126 ओपन करना है और उसमें मेरे साथ देखना है. ओके तो सबसे पहले क्या आएगा, तो पार्ट 1 इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. क्या आएगा आपका, ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. उसके अंदर कितने पार्ट है, 3. देखो आपको दिया है कौन कौन सा 3 पार्ट, तो 1 शेयर होल्डर्स फंड, देन 2 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड 3 दैट इज करंट लायबिलिटीज. सो यहाँ पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. उसके बाद शेयर होल्डर फंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए एंड बी. ए में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, एंड बी में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस. और उसको नॉट नंबर क्या दिया हमने, 1 एंड 2. तो 1 नंबर किसके लिए, नॉट नंबर शेयर कैपिटल. नॉट नंबर 2 किसके लिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस. आपको अब याद रखना है. फिर दूसरा क्या आएगा, तो नॉन करंट लायबिलिटीज. उसमें कितने पार्ट है, सब पार्ट, तो 3, ए बी एंड सी. ए किसके लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड सी तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन. उसकी नोट नंबर क्या है, तो 3, 4 एंड 5. तो अब आपको याद रखना है कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन 3, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. शेयर होल्डर फंड्स में कितने पार्ट आते हैं, 2, ए एंड बी. क्या क्या, तो एक शेयर कैपिटल ए, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस. इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट ओनली. आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके बाद फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद ए शेयर कैपिटल, उसके बाद बी रिजर्व एंड सरप्लस,
उसमें नॉट नंबर जो दिया है वो 1 और 2, वो उसमें भी चेंजेस होना चाहिए नहीं। फिर दूसरे नंबर पे क्या है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें क्या आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसमें नॉट नंबर क्या है 3, 4 एंड 5। यहाँ पे ए बी एंड सी ये सीक्वेंस में आना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन पहले लिखते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग बाद में लिखते हो तो भी नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मेट इन दिस फॉर्म ओनली। इसमें हम कोई चेंजेस कर सकते नहीं है बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हम कोई चेंजेस कर सकते नहीं है। उसके बाद आपकी आएगी करंट लायबिलिटीज, तो उसमें कितने हैं 4 पार्ट है। तो करंट लायबिलिटीज में 4 पार्ट है, उसमें कौन कौन से हैं ए बी सी एंड डी। तो उसमें पहला ए क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद बी क्या आएगा ट्रेड पेएबल्स, उसका सी क्या आएगा अदर करंट लायबिलिटीज और डी क्या आएगा तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में इतने पार्ट आएंगे। मेन इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। उसके बाद शेयर होल्डर फंड को 2 में डिवाइड करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद थर्ड दैट इज करंट लायबिलिटीज, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेएबल्स, सी अदर करंट लायबिलिटीज एंड डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब इसमें कोई चेंज आप कर सकते नहीं हो। यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आपको दिया उसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में लिखना है, इसी फॉर्म में, ये फॉर्मेट लिखना ही आपको याद रखना। आपको एग्जाम में फॉर्मेट लिखना है, सिर्फ आपको अमाउंट दिया होगा, वो अमाउंट जैसे से दिया होगा शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, रिजर्व सरप्लस यहाँ लिख देंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो यहाँ लिख देंगे। आपको अमाउंट लिख के डायरेक्ट टोटल करना है लास्ट में, बराबर। उसके बाद शेड्यूल नंबर आपको याद रखना है, नॉट नंबर कि 1 और 2 नॉट नंबर जाएगा किसके लिए शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस के लिए। 3, 4 एंड 5 नॉट नंबर किस में जाएगा तो नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए 3, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए 4 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9 ये जाएंगे करंट लायबिलिटीज में। उसमें 6 नंबर जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए, 7 नंबर जाएगा आपका ट्रेड पेएबल्स के लिए, 8 नंबर जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज के लिए और 9 नंबर जाएगा आपका शॉर्ट प्रोविजन के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए। नॉट नंबर 1 to 9 कहाँ पे आएगा लायबिलिटीज आएगा, कहाँ पे आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आएगा, बराबर। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मेट कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कितने डिवाइड करते हैं हम, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। उसके बाद शेयर होल्डर फंड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर। उसके बाद नॉन करंट को 3 पार्ट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद करंट लायबिलिटीज को 4 में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और जो ए बी सी दिया है वो आपको याद रखना है, इसमें चेंजेस होना चाहिए नहीं। अब आपको याद रखना है पहले पार्ट में शेयर होल्डर में 2 आता है ए एंड बी, फिर नॉन करंट में आता है 3 ए बी सी एंड करंट लायबिलिटीज आता है 4 ए बी सी एंड डी, बराबर। आपको ये याद रखना है। अब इसमें क्या जाएगा आपको कैसे एग्जाम में देंगे हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है कि फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, उसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में कितना आता है वो यहाँ पे को दिखा 1 दिखा है, आपको दिखा है यहाँ पे 1, तो 1 पार्ट हो गया क्या इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। नाउ विल डिस्कस असेट साइड। ना असेट साइड में देखो यहाँ पे लिखा आपको सेकंड पार्ट असेट्स, उसमें क्या लिखा है फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, आपको हेडिंग देना है। उसके अंदर कितने पार्ट है ए बी सी एंड डी। उसमें एक क्या है फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में भी 2 पार्ट है, 1 टेंजिबल असेट्स एंड सेकंड क्या है इनटेंजिबल असेट्स। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है, बराबर। पहले क्या लिखना है नॉन करंट असेट्स, उसमें क्या है ए फिक्स असेट्स, उसमें क्या है फर्स्ट टेंजिबल असेट्स एंड सेकंड इनटेंजिबल असेट्स, और उसका नोट नंबर क्या है 10 and 11। So note number 10 is for what tangible assets and note number 11 is for what intangible assets। उसके बाद भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका नोट नंबर क्या है 12। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसका नोट नंबर 13, और उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स, उसका नोट नंबर है 14। सो नॉन करंट असेट्स में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम 4, ए बी सी एंड डी। और ए को कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं फिक्स असेट्स, उसमें 2 है टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल। जितनी भी टेंजिबल असेट्स आपको दी है एग्जाम में वो यहाँ पे लिखनी है, उसका टोटल आपको बाहर लिखना है। जितनी भी इनटेंजिबल असेट्स आपको दी है उसको इनर कॉलम में लिखना है, उसका टोटल आपको बाहर लिखना है, बराबर। ये सब हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। एट प्रेजेंट आपको इतना याद रखना है कि असेट्स में कितने पार्ट है। तो असेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉन करंट असेट्स और दूसरा करंट असेट्स। जैसे बैलेंस शीट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बराबर। इसी तरह असेट्स को 2 पार्ट में, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। उसमें नॉन करंट असेट्स में कितने पार्ट है तो 4,
ABCD। उसके बाद करंट असेट्स, तो करंट असेट्स कितनी आपकी है, तो टोटल 6 है। देखो आपको दिया है, यहाँ पे आपको दिया है टोटल कितना दिया है 6। कौन कौन सी, तो पहले क्या आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, उसका नोट नंबर क्या है 15, इन्वेंट्रीज उसका नोट नंबर 16, ट्रेड रिसीवेबल उसका नोट नंबर 17, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 18 नंबर नोट, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दैट इज नोट नंबर 19 एंड अदर करंट असेट्स उसका नोट नंबर 20। सो टोटल 20 नोट्स हमको बनानी है। मैंने बताया था ना आपको कि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या क्या आता है उसमें, बैलेंस शीट आती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, फिर चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो, और लास्ट में क्या आता है नोट्स। तो ये नोट्स भी हमको बनानी है। इस नोट्स के अंदर हम दिखाते हैं कि आंसर कैसे आया, बराबर। जैसे कि फिक्स असेट्स है तो टेंजिबल असेट्स कितनी है और इनटेंजिबल असेट्स कितनी है, उसका टोटल कैसे है वो हम उसकी नोट्स में दिखाते हैं, नोट नंबर 10 एंड नोट नंबर 11। वो मैं हम आपको बाद में डिस्कस करते हैं हमकी नोट कैसे बनानी है और कैसे होती है नोट्स। हमको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में नोट्स बनानी नहीं है। आपको ये चैप्टर कॉलेज में आएगा, कॉलेज में आपको शायद नोट बनाने के लिए बोला जाएगा, लेकिन यहाँ 12th स्टैंडर्ड में हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा कि टेंजिबल असेट्स इतनी है, इनटेंजिबल असेट्स इतनी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतने हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांस इतने हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिख देना है फॉर्मेट लिख के, लेकिन आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, बराबर। तो करंट असेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने 6। देखो यहाँ पे ABCDEF। अब इस सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते नहीं हो। सबसे पहले क्या आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विपमेंट, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और उसके बाद अदर करंट असेट्स। इस सीक्वेंस को आपको चेंज करना नहीं है एग्जाम में, आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 126 एंड 127, पर उसी तरह से आपको ये फॉर्मेट एग्जाम में ड्रॉ करना है। और फिर जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी होगी क्वेश्चन में वो आपको उसके सामने लिख देना है और आपको टोटल करना है। यहाँ पे लास्ट में टोटल आएगा, तो जो असेट्स साइड का टोटल है ना वो आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के साइड के टोटल से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में देखो है ना, सीधे फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सी बैलेंस शीट है, वर्टिकल फॉर्म। जो हम सोल प्राइसिप और पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं ना उसमें 2 साइड थी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड असेट साइड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में है ना, सीधा फॉर्म में है, बराबर। तो आपको ये फॉर्मेट अपनी बुक में लिख देना है और आपको याद भी करना है, बराबर। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ये फॉर्मेट लिखना है। और हर साल बैलेंस शीट ही पूछते हैं एग्जाम में, आपको 11 मार्क्स में बैलेंस शीट ही पूछते हैं, बराबर। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले फॉर्मेट लिख देना है, बराबर। इसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ओके। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब ये फॉर्मेट में जो नोट्स है वो नोट डिस्कस करेंगे हम, बराबर। तो सबसे पहले आएगा आपका शेयर कैपिटल। ये नोट्स आपको एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, आपको ऐसी नोट्स भी बनानी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर। तो एक बार समझ लो कि नोट्स कैसी होती है और कैसे नोट्स बनती है और उसका फाइनल आंसर हमको बैलेंस शीट में लिखना होता है, ओके। तो नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस बैलेंस शीट फॉर्मेट इन योर नोटबुक। Before writing this format, you have to also write down meaning of financial statement, then characteristics of financial statement, meaning of financial year and objective of financial statement, बराबर। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको ये फॉर्मेट आज आपको बुक में ड्रॉ करना है और जिस तरह से आपको दिया है उसी फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है विथ नोट नंबर। उसमें आप कोई सीक्वेंस चेंज कर सकते नहीं हो, कोई हेडिंग को भी चेंज कर सकते नहीं हो, बराबर। तो आज हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको एग्जाम में ऐसे बोलेंगे कि फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको समझना है, आपको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, बराबर। सो नाउ यू राइट डाउन दिस फॉर्मेट इन योर नोटबुक। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस नोट्स। आपको जो नोट्स लिए ना, नोट्स नंबर आपने दिए, देखो ये 10, 11, 12, 13, 14 सब क्या है, नोट्स नंबर है। तो नोट्स नंबर कैसे आते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर से फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वो सब हम डिस्कस करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये फॉर्मेट अभी लिखना है, ओके।
So just write down this format in notebook. In next lecture we discuss different notes which are prepared when we prepare balance sheet. Okay, so thank you and have a nice day.